So today we are going to see the Government of India Act 1935. In the previous video, we have discussed the diarchy, and before that we have seen the Act of 1919 and defects also. So in this video, we are going to cover the Government of India Act 1935, and this act was the last constitutional instruments given by the British Parliament, and it serves till the end of the that's British rule, that is till 14th August 1947. So our constitution depend, or you can say that most of the structure of the our constitution are taken from this final act. And like we can see parliamentary divisions of the higher court and lower court as Rajya Sabha and Lok Sabha. So all these were the part of the Government of India Act 1935. So let us start for factors responsible for the passing of the Government of India Act 1935. So the number one was the passing of the Rowlatt Act. We have seen about the Rowlatt Act. So basically, a committee was made, and that's the chairman of that committee was Justice Rowlatt, which given two bills in the central legislature, and these two bills were known as Rowlatt bills. So the Rowlatt bills conferred comprehensive powers of the preventive detention of the on the executives, making it easy for the government to punish all the suspect agitators. So basically, the Rowlatt Act has given the or you can say that a prastav rakha about the preventive detention. So what is preventive decision? So let's see what was preventive decision. So detention on executive refers to the power of executive, that is government authorities, to detain a person without a trial or formal charges if they are suspected of posing a threat to public order, national security, or law and order. So main thing was that the detention was just done on the basis of suspension rather than any proof of wrongdoing. So what were the criticisms? The criticisms were that number one, it violated the fundamental rights, that it prevented individuals from defending themselves legally, misused by government, and can be misused to silence political opponents or suppress dissents, and lack of transparency, that is detainees may not always know the reasons for their detention. Means detainee को the person who has been detained उसे हमेशा ये रीज़न नहीं पता पड़ सकती कि किस लिए उसे डिटेन किया जा रहा है, हमेशा रीज़न नहीं बताया जाता, एंड ही मे गेट डिटेन. सो बेसिकली वो तीन प्रकार की क्रिटिसिज्म थी. पहला, वो हमारे फंडामेंटल मूल्यभूत अधिकारों का हनन करता है. दूसरा, गवर्नमेंट इस चीज़ को गलत तरीके से उपयोग कर सकती है. और तीसरा कि ये ट्रांसपेरेंसी को लैक करता है, क्योंकि हम जहाँ तक कि मतलब प्रोसीजर था कि जस्ट जो क्रिमिनल है उनको अधिकार है, वो अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, वो अपना कारण जान सकते हैं. बट जो अंडर द प्रिवेंटिव डिसीजन दिस वाज नॉट अलाउड. So let's see. So Rowlatt Act proposed preventive detention. Also, one thing more, Rowlatt Act was known as Black Bill. Black Bill. It was announced by the Black Bills by the Indians. So basically here, no appeal, no dalil and bakil means you can say it's a type of sarcasm statement कि एक बार आप डिटेंड कर दिए गए तो आपका कोई अपील काम नहीं करेगा, आपका कोई दलील नहीं काम करेगा, आपका कोई वकील भी नहीं रख सकते. So this was the Rowlatt bill. So in number second factor responsible was that incident of Jallianwala Bagh and non-cooperation movement. सो जैसे ये बिल आया तो गवर्नमेंट गांधी जी ने इसे ब्लैक बिल करार दिया. एंड इसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस के लिए उन्होंने हड़ताल स्टार्ट किया ऑन March 13, 1919. So unfortunately, disturbance took place in Delhi, Ahmedabad, and some cities of Punjab.
इन कुछ सिटी में कुछ डिस्टर्बेंस हुई, एंड डिस्टर्बेंस इन द सेंस मीन्स कुछ राइट्स हुई, कुछ लोगों का मीन्स फॉरवर्ड आना हुआ डायरेक्टली गवर्नमेंट से, क्वेरल टाइप मीन्स वायलेंस हुआ। तो इसके अगेंस्ट जो गवर्नमेंट ने है वहाँ पे मार्शल लॉ इम्प्लोज की मार्शल लॉ जो है वो लगा दिया। एंड जो वहाँ का अमृतसर का जो डिप्टी कमिश्नर था, कमिश्नर थे डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर किचलू वेर अरेस्टेड, एंड सॉरी गवर्नमेंट कमिश्नर ऑफ अमृतसर डॉक्टर सत्यपाल and Dr. Kichlu got arrested, and they were the two important leaders of the Punjab and sent them to jail धर्मशाला। इनको जेल धर्मशाला नामक जेल में डाल दिया गया। टू एक्सप्रेस देयर रिजेंटमेंट अगेंस्ट दिस, ऑन अप्रैल 13 1919 एक पीसफुल असेंबली बुलाई गई थी जालियांवाला बाग के अंदर। और जब मीटिंग चल रही थी तब जनरल डायर ने अपने 150 सोल्जर के साथ आए एंड ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दी, जिसके कारण 300 गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने बोला कि 379% 379% डाइड एंड 3000 गट इंजर्ड, बट अकॉर्डिंग टू कांग्रेस thousands people died and many more got injured. So Jallianwala Bagh created a great resentment among the people of India and it changed their attitudes towards the British. So basically थोड़ी बहुत जो कसर बाकी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, थोड़े ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जो थोड़े बहुत इडियंस थे वो भी अब विरोध में चले गए, बिकॉज सच अ ह्यूज नंबर ऑफ डाइंग टुक प्लेस. It was a brutal act. Jallianwala Bagh was a brutal act done by the General Dyer, or you can say by the Britishers. So as a result of this inhuman atrocities being committed on the people, Mahatma Gandhi decided to launch non-cooperation movement. We have we have heard about the non-cooperation movements while we are studying in the class 10th also, class 9th also. So these were the just part of the political science or SST. Basically we have a small few ideas, or you can say that little ideas about the non-cooperation movements earlier also. So what was that? So basically Congress party passed resolution to start non-cooperation movement at its Nagpur session held in December 1920. सो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के स्टार्ट की गई थी, तो इसका जवाब होगा एट द नागपुर सेशन it was decided, and that was the Nagpur session was done in December 1920. So basically exact date is unknown. So under the program of non-cooperation movement, the Indians were asked to give back the titles and other position given to them by the government, to boycott the government education institution हमने पढ़ा था कि government ने after the Queen's Proclamation of 1858 government started opening various institutions, but उसके बाद हमने ये भी देखा था कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि वो इंस्टीट्यूशन पे कंट्रोल अपना कंट्रोल ले आए थे थ्रू वन एक्ट, एंड ऑन दैट एक्ट वाज दैट कि टीचर्स का भर्ती तभी होगा दैट दे क्वालिफाई द स्टैंडर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. सो बेसिकली इस एक्ट के मामले में, इस एक्ट से उन्होंने क्या किया था कि एक तरीके से वो जो यूनिवर्सिटीज़ में एज नेशनलिस्ट मूवमेंट्स, नेशनलिस्ट एक गैदर होके प्लान कर रहे थे या एक्टिविटी हो रही थी नेशनलिस्ट वाली, वो सब बंद करने की कोशिश की थी. सो वी हैव सीन, सो गवर्नमेंट क्या किया कि थ्रू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट now it was asked by the Indians to boycott government institution, to boycott foreign goods, courts, resignation by the nomination members of the local self-government, boycott of election of provincial and central legislative council. So everything that was given by the Britishers as you can say एक लालच की तौर पे दिया गया था, ताकि जो इंडियंस के अंदर एंगर है वो कम किया जा सके. उस लालच को थ्रू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बोला गया कि वो सारे को त्याग करें
and even boycott their goods also, so that Indians can grow economically. So the people were asked to open their own educational institution. लोगों को बोला गया कि आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुद खोलें, पंचायती राज को चलाएं, एंड टू यूज स्वदेशी गुड्स, एंड खुद के देश का बनाया, स्वदेशी में खुद के देश का बनाया हुआ गुड्स का यूज़ करें, एंड टू यूज स्पिनिंग व्हील्स टू इरेडिकेट अनटचेबिलिटी एंड स्ट्रेंथन हिंदू मुस्लिम यूनिटी। मीन्स अपने स्पिनिंग व्हील का यूज़ करें जिस कपड़ा वपड़ा बनाने के लिए, एंड अनटचेबिलिटी हो गया, और हिंदू मुस्लिम के बीच में जो कमजोरी है या गुस्से नाराजगी है उसे दूर किया जाए। So when the non-cooperation movements was at its full swing, there was an outbreak of mass violence at the village of Chaudi Chauda. So एक ड्रॉबैक इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का ये रहा कि एक वायलेंस एक्ट हो गया। बेसिकली it was not like a drawback, but it was against the principle of the गांधी जी। सो इट वाज ये हो गया था कि चौड़ी चौड़ा एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे चौड़ी चौड़ा कहाँ है, एक चौड़ी चौरा एक विलेज है जो कि गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में था ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस। सो बेसिकली वहाँ पे हुआ था कि 22 पुलिसमैन को जिंदा जला दिया गया था इन द पुलिस स्टेशन ओनली। सो जब गांधी जी को ये बात पता चली तो उन्होंने इस मूवमेंट को वापस बुला लिया। दो दिस डिसीजन ऑफ Gandhiji gave setback to the national movement and peoples got disappointed. It helped in strengthening the national movement in India. मीन्स यद्यपि गांधी जी ने जब इस मूवमेंट को वापस बुलाया तो लोग नाराज हो गए, डिसअपॉइंटेड हो गए, बट फिर भी जो ये मूवमेंट था नेशनल मूवमेंट को इसने बहुत ताकत दी थी। कांग्रेस बिकेम द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमन पीपल, लोगों का कांग्रेस पर भरोसा बढ़ गया। नेशनल यूनिटी बिकेम स्ट्रॉन्ग एंड दिस स्वीट साउंड ऑफ अ स्पिनिंग व्हील वाज हर्ड इन एवरी होम। मीन्स लोग अपना कपड़ा खुद बनाना शुरू कर चुके थे। सो बिकॉज ऑफ दैट स्पिनिंग व्हील साउंड कैन बी हर्ड इन एवरी हाउस। नंबर थर्ड फैक्टर जो रहा, पहला फैक्टर था कि रॉबर्ट बिल से लोग नाराज थे, दूसरा फैक्टर जालियांवाला बाग और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रहा जो कि सीरीज में हैपन होता गया। तो इसके कारण जो ये भी मतलब ये भी ये भी कारण बने जिसके कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 लाना पड़ा। तीसरा कारण था कि स्वराजिस्ट पार्टी एंड इट्स पॉलिसी ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। सो बात was स्वराजिस्ट। So basically Swarajist were basically the party of the you can say this they divided themselves into Swaraj party. They people started calling them into Swaraj party. So later when we will study we will see what is that. So the sudden collapse of non-cooperation movement was bitterly resented by the large number of Congress workers, and they organized themselves into Swaraj party, and they were known as Swarajist. So their leaders were C.R. Das, Ajmal Khan, and Pandit Motilal Nehru. Out of these three, Pandit Motilal Nehru became the most highlighted one. So these leaders were of the opinion that instead of boycotting the elections, we should take part in the election of the legislative councils by entering this body. We should follow the policy of obstruction. मीन्स इनका कहना था कि हमें इलेक्शंस को बायकॉट करने की जगह हमें इनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और मेजोरिटी लेकर इस पॉलिसी ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन फॉलो करना चाहिए। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ब्रिटिश गवर्नमेंट विल इधर अमेंड द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। और उनका मानना था कि इन चीज़ों से या तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेगी, जैसे कि वो रॉबर्ट बिल के बारे में ज़्यादातर बात की जा रही है जिसे ब्लैक बिल कहा गया, तो या तो उस चीज़ को अमेंड करेगी या फिर ऑल विल पास अ न्यू वन, या फिर कोई दूसरा पास करेगी। So under this plan, the Swarajists contested the general election in 1923. So यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि
कब स्वराजेश ने इलेक्शन कंटेस्ट किया था? सो इट वाज इन 1923 एंड 45 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पार्टी गॉट इलेक्टेड टू दिस सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। एंड टोटल कितने, ये भी क्वेश्चन बन सकता था कि जब 1923 में इलेक्शन हुए थे, स्वराजेश ने जब इलेक्शन लिया, मिस कंटेस्ट में भाग इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, तब कितने रिप्रेजेंटेटिव थे जो सेलेक्ट हुए थे? सो द नंबर इज 45 and with the support of the few more members the Swarajist party was able to get majority in the council। so और भी दूसरे कुछ मेंबर से सपोर्ट लेकर, इससे सपोर्ट प्राप्त करके स्वराजिस्ट जो थे मेजोरिटी में आ गए। एंड नेक्स्ट ईयर उस इलेक्शन जीतने के जस्ट एक साल बाद पंडित लाल नेहरू ने एक अमेंडमेंट बिल पास किया एंड डिमांडेड इन दैट अमेंडमेंट he demanded the amendment of the Act of 1990। He also proposed that the Round Table Conference be convened to frame the new Constitution of India। Round Table Conference is basically the conference for discussing the various issues and taking the new decisions। सो बेसिकली वहाँ पे इनका सजेशन ये था कि पहले तो एक्ट को 1919 एक्ट को अमेंड करो, जो कि रॉबर्ट बिल का था एंड रॉबर्ट्स बिल्स था, एंड सर्टेन और भी एक्ट थे जो जिसे कि अमेंड करने के लिए डिमांड किया गया। एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात की गई ताकि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो कि इंडियंस के फेवर में हो, उसे बेसिकली लागू किया जाए या लिखा जाए, फ्रेम किया जाए। So third reason we have seen. Number fourth reason was the Moody Man Inquiry Committee of 1924। So what is that? This Moody Man? Moody Man. So on the demand of Swaraj Party, with the purpose to make amendment in the Act of 1990, the Moody Man Committee was appointed in 1924। It has 12 members and Sir Alexander मूडी मैन वाज इट्स चेयरमैन। सो बेसिकली इस कमेटी का नाम मूडी मैन इसलिए पड़ा क्योंकि सर अलेक्जेंडर जो थे, सर अलेक्जेंडर मूडी मैन वाज दे इट्स चेयरमैन। और इसमें जो थे सर तेग बहादुर सप्रू एंड मोहम्मद अली जिन्ना वर द मेंबर्स ऑफ दिस कमेटी। सो बेसिकली वी हैव सीन दैट Sir Tej Bahadur Sapru was basically lawyer that was appointed by the Britishers। So Sir Tej Bahadur Sapru and Muhammad Ali Jinnah, the Muslim League committee head, were the member of this committee, and the committee was to evaluate the basic weakness of the Act of 1919, and the problem arose as a result of the implementation of the provision of the Act and to submit it to, and the problem arises as a result of the implementation of the provision of this act and to submit its report। so basically इस कमेटी का काम ये था कि ये अपना सजेशन जो है वो देगी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट अबाउट द वीकनेसेस ऑफ द एक्ट ऑफ 1919। सो बेसिकली यहाँ पे दिक्कत ये आई कि जो सजेशंस यहाँ इस एक्ट के मूडी मैन इंक्वायरी कमेटी के द्वारा दी गई थी वो इंडियंस पीपल्स को पसंद नहीं आई। नंबर 5th कारण जो बना था, इट वाज रिकमेंडेशन ऑफ साइमन कमीशन। सो बेसिकली विद द पर्पस टू एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक वर्ड वी सी इन दिस मैचेस of fighting or boxing, we have used this word deadlock। so basically it's a situation where both sides are unable to do anything। so basically in constitution, with the purpose to end the constitutional deadlock, the British government under the leadership of Sir John Simon sent an all white men seven member commission to India in 1928। so basically question could be asked, who was the leader of the Simon commission? So obviously it was Sir John Simon, because the you can see that name is based on his name। and the next question that could be asked is how many member was in the Simon commission and when it came to India? so basically there were 7 members and it came to India in 1928। so on the account of non-inclusion of any Indian members, all political parties decided to boycott the commission। so basically Indians people said that
as there are not even a single Indian members in this committee, so we are not going to accept the suggestions of this committee. बट इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके बावजूद मीन्स इंडियंस पीपल के रेजिस्टेंस के बावजूद दिस कमीशन के मेंबर्स जो थे वो उन्होंने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया का टूर किया और इस अपना रिपोर्ट 27 जून 1930 को दिया विथ गिवन रिकमेंडेशंस. उसमें रिकमेंडेशन था नंबर 1, डायरकी एज अ फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस शुड बी अबॉलिश्ड in place of full-fledged responsible government be established. Means we have seen, we have discussed before this the act of 1935, we have seen about the diarchy, where we have seen the division of the provincial leads and the finance department's controls, transfer of subjects we have seen. So basically this Simon report suggested that the hierarchy should be ended and full-fledged responsible government should be created. And the central number second thing that suggestion was that or recommendation was that central control over the provincial government be relaxed. मीन्स सजेस्टेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उस वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे कुछ ज़्यादा ही कब्जा करके रखी हुई है या कंट्रोल करके रखी हुई है. सो दैट शुड बी रिलैक्स. उस थोड़ा सा प्रोविंशियल गवर्नमेंट को रिलैक्स देना चाहिए, उनको अपना डिसीजन लेने का देना चाहिए. नंबर थर्ड जो था, द फ्रेंचाइज कंडीशन शुड बी लोवर्ड एंड एक्सटेंडेड. मीन्स franchise means voting right, as we have seen in the previous videos that only 2.3% of the Indians were able to give votes. So basically Simon's commission suggested that 10 से 15% people को influenced in a franchise means मताधिकार देना ही चाहिए. 10 to 15% of Indian people should be allowed to give vote or stand up in the elections. So and number fourth recommendation was the all India Federation be established in the near future. ऑल इंडिया फेडरेशन जो है उसे ख़त्म करना चाहिए. एंड वी विल सी ऑल इंडिया न्यू फेडरेशन इन द कमिंग वीडियो, सो डोंट वरी अबाउट दैट. And number fifth suggestion was Burma should be separated from India and Sindh from Bombay. So number fifth that talk about the separations of the India from Burma from the Sindh and Burma from India and Sindh from Bombay. These things angered the Indian peoples again. It फर्स्ट में तो हमने साइमन कमीशन का ही विरोध किया, उसके बावजूद खुद में टूर करके अपना रिकमेंडेशन दी जा रही है, खुद ही दे रही है, खुद ही इम्प्लीमेंट कर रही है. सो दिस ऑल फीलिंग्स क्रिएटेड एंगर इन द माइंड ऑफ द इंडियंस. एंड वी हैव आल्सो सीन दैट ये पुरानी जो एंगर्स के का मेन वजह था जो वेरियस फेमिन्स दैट हैव टुक प्लेस विद इन अर्ली 19th century. So all these together were becoming you can say गोला बन रहा था, आग का गोला बने जा रहा था. So we have seen recommendation of Simon Commission also become one of the anger and the factor responsible for the passing of the Act of 1935. Number 6 was the All Party Conference and the Nehru Report. So when the Simon Commission was touring in India, then Indian National Congress convened an all-party meeting in Delhi. The purpose of this meeting was to think about the future constitution of India. इस मीटिंग का पर्पस था ताकि वो अपने फ्यूचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को यू कैन से वो उस फ्यूचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सोच सके, क्या रूल बनाना चाहिए, क्या नियम बनाना चाहिए, उस पर वो वर्क कर सके. The meeting was committed under the leadership of the Pandit Motilal Nehru, and we have seen he was the member or leader of the Swarajist party. So this committee was interested to frame the constitution for India, and the recommendation of this committee, also known as Nehru Report, published in August 1928. So इसका जो रिपोर्ट जो पब्लिश हुआ था वो अगस्त 1928 में आया. नेहरू ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है नेहरू रिपोर्ट.
जो पब्लिश हुई वो हुई अगस्त 1928. एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एंड द इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमिटी वाज नंबर 1, डोमिनेंट स्टेटस विद इन द ब्रिटिश एम्पायर. Within British Empire was India's political objective. So we have seen what was dominant status. So basically, dominant status refer to a constitutional arrangement where country is semi-independent. Means India were to be get a semi-independence, but it was to be still the part of the British Empire, and it will still recognize the British monarch as the head of the state. So basically, the thing is that dominant state had full control over its internal affairs, but not over foreign policy and defense. And because in foreign policy and defense are still influenced by the you can say host country, that is Britain. So basically, the this the August 1928 report of this Nehru committee, और दिल्ली ऑल मीटिंग दिल्ली कमेटी जो फॉर्म हुई थी, उसका रिपोर्ट ये कह रहा था कि इंडियन का जो हमारा जो इंडियन पॉलिटिकल का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो है कि डोमिनेंट स्टेटस एक्वायर करना, एंड इंडिया भी डिक्लेयर अ सेकुलर स्टेट विथ नो स्टेट रिलीजन. क्योंकि बेसिकली बात ये हो रही थी कि ब्रिटिशर्स हमारे रिलीजन्स को एज अ वीकनेस ले रहे थे, एंड दे वर ट्राइंग टू डिवाइड इंडियंस बाय गिविंग देम वोटिंग राइट ऑन द बेसिस ऑफ द कम्युनिटी. सो ये हमारे जो बीच में जो इंडियंस के पीपल्स के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग थी, दैट वाज अगेन गेटिंग मीन्स यू कैन से it was getting causing dangers to the unity of the India. So the report asked that it should be that a secular state, India should be declared a secular state with no state religion, and provision be made of bicameral legislature in central and union executive be made responsible to the parliament. Earlier we have seen that uh, earlier executive was not responsible to the parliament. So basically Indians wanted that executive should be responsible to the parliament, so that their actions can be their actions can be discussed in the parliament, and they not take unnecessarily any decisions on their own. Number fifth was the separate electorate were to be declared in favor of joint electorate with reservation of seat for Muslim at the center and in the provinces where they were in minority. So basically number fourth जो था कि separate electorate were to be discarded in favor of joint electorate. मीन्स इन कहना था कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट होनी चाहिए, और जो सेपरेट इलेक्टोरेट है मुस्लिम्स का उसे डिस्ट्रॉय किया जाना है, उसे एंड किया जाए, एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द मुस्लिम एट द सेंट्रल एंड प्रोविंसेस वेयर दे वर इन माइनॉरिटी. और इस सेपरेट इलेक्टोरेट्स को ख़त्म करके एक सेंटर में इलेक्शंस करवाया जाए, एंड बेसिकली मुस्लिम मेंबर्स को उसी सेंट्रल इलेक्शंस में बेसिकली रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाए. Number fifth was in NWFP. NWFP is Northwest Frontier Provinces. Northwest Frontier Provinces. So in Northwest Frontier Provinces, so seats should be reserved for Hindus. Hindus के लिए सीट जो है रिजर्व किया जाए, एंड ज्वाइंट इलेक्टोरेट सिस्टम शुड बी अडॉप्टेड. और ज्वाइंट इलेक्टोरेट सिस्टम अडॉप्ट किया जाए ऑल ओवर द इंडिया, एंड ऑल इंडिया फेडरेशन शुड बी फॉर्म. ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाना चाहिए. So in the later coming video we will see what is all India Federation. For now just remember these were the 7 suggestion of the all the conference, or the you can say the reports of the this Nehru report. Basically its name was Nehru report. So these were the 7 points or recommendation of the Nehru report, which was published in August 1928, in the same year of the when the Simon Commission came to India. So number seventh factor which became the
factor of the that Government of India Act. Factor responsible for the passing of the Government India Act is the Lord Irwin Declaration of the 1929. So basically happened हुआ ये कि लाला लाजपत जो थे लाला लाजपत राय का जो साइमन कमीशन के विरोध में प्रोटेस्ट करते हुए डेथ हो गई थी, एंड ड्यू टू विच गिव बर्थ टू मैनी वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, एज अ रिजल्ट ऑफ विच सिचुएशन फर्दर डिटोरिएटेड। लाला लाजपत राय के डेथ के बाद और भी वायलेंस होने लग गई, एंड इसके कारण जो था सिचुएशन जो था वो ख़राब होते चला गया। एंड ड्यूरिंग दिस days the general elections were held in England and गवर्नमेंट ऑफ द लेबर पार्टी, गवर्नमेंट जो था इसी दौरान इंग्लैंड में इलेक्शन हुए, एंड लेबर पार्टी जो थी वो लीडरशिप में आई, एंड इनके लीडर जो थे रामसे मैकडोनल्ड बने। सो बेसिकली रामसे मैकडोनल्ड लीडर थे, लेकिन इनकी जो रामसे मैकडोनल्ड के अंदर लीडरशिप के अंदर लेबर पार्टी जो थी वो इलेक्शन जीती। ठीक है, द लेबर गवर्नमेंट कॉल्ड लॉर्ड इरविन द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। उस वक्त 1929 में लॉर्ड इरविन जो थे वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, इसलिए लेबर पार्टी ने उन्हें अपने इंग्लैंड बुलाया और वेरियस सिचुएशंस को उनके साथ डिस्कशन किया, बातें हुई, एंड आफ्टर दैट व्हेन लॉर्ड इरविन केम बैक टू इंडिया देन डिक्लेयर, और जब वो इंग्लैंड से वापस इंडिया आया तो उन्होंने बोला कि मुझे बोलने के ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बोलने के लिए कहा गया है कि द पर्पस ऑफ डिक्लेरेशन 1917 वाज ग्रेजुअली टू गिव डोमिनेंट स्टेटस टू इंडिया, डोमिनेंट स्टेटस टू इंडिया, बट द थिंग वाज दैट in 1970 we have seen that it was the main objective of the declaration 1970 was to give or to establish self-governance in India. But here the statement was changed that main aim of the declaration was to gradually give dominant status to India. So लॉर्ड इरविन, उसके बाद लॉर्ड इरविन ने राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल का जो INC का डिमांड था उसके बारे में भी कुछ हिंट किया। सो बेसिकली यहाँ से फिर अगेन एंगर पीपल मतलब एक काउज बना एक्ट ऑफ 1935 पास करने का। ठीक है, नंबर 8 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पासिंग 1935, यू नो। सो नंबर 8 रीजन जो बना वो था लाहौर कांग्रेस एंड रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। Sorry. So Lahore Congress and Resolution of Complete Independence. So basically in 1929 the annual session of the Indian National Congress जो था वो लाहौर में लीडरशिप पंडित जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप के अंदर बुलाई गई थी, एंड इन इस सेशन में रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज पास्ड। मीन्स इस सेशन में डिसाइड किया गया कि जो अल्टीमेट एम है वो है to gain complete independence. And at the midnight of December 31, 1929, tricolor flag was unfurled by the Pandit Jawaharlal Nehru, and it was decided that this day will be celebrated as the Independence Day. और स्लोगान amidst the shouting of the slogan complete independence was declared the objective of the Congress party. Under this resolution all India Congress committee was authorized to take decision to start civil disobedience movement. इस कमिटी मतलब ऑल इंडिया कांग्रेस को इस बेसिकली सेशन से मतलब अथॉरिटी मिली कि वो सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट करे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करे, एंड ये डिसीजन लिया गया कि जनवरी 26 1930 को एज अ इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट करेंगे। सॉरी मैंने पहले बोल दिया था कि दिसंबर 31 को मतलब इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए डिसाइड किया गया था। नहीं, बेसिकली ये था कि 26 जनवरी 1930 वाज डिसाइडेड टू बी सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे। सो लाहौर कांग्रेस लाहौर का जो सेशन हुआ था इसमें ऑन दिसंबर 31 1929 इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस दिलवाना है फ्रॉम द ब्रिटिश, एंड इसी के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बनाई गई इस लाहौर सेशन में, जिसका अल्टीमेट डिसीजन था कि इसका अल्टीमेट एम था
कि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करे। और एक और कंक्लूजन जो निकला वो ये था कि जनवरी 26, 1930 को एज अ इंडिपेंडेंस डे थ्रू आउट इंडिया विल बी सेलिब्रेटेड। Number ninth reason was the civil disobedience movement. So according to Lahore resolution, इस लाहौर रेजोल्यूशन के अनुसार जो अभी हमने पढ़ा उसके अनुसार महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने का डिसीजन निर्णय लिया। एंड अंडर द प्रोग्राम ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी अलॉन्ग विद 79 कंपनियन ऑफ 79 कंपनियन, गांधी जी और 79 उनके साथी मीन्स टोटल 80 मेंबर जो थे साबरमती आश्रम को छोड़ते हैं 12 मार्च 1930 को। एंड वहाँ से वो अपनी 24 दिन का यात्रा के बाद वो डांडी नामक एक विलेज में पहुँचते हैं, जो कि जो कि विलेज था वो बैंक ऑफ सी मीन्स सी के समुद्र के तट पे था। और वो 24 दिन के बाद अप्रैल 5, 1930 को वहाँ पहुँचते हैं। और वहाँ से उन्होंने सॉल्ट लॉ को वायलेट, फर्स्ट जो स्टार्टिंग हुई थी वो था वायलेशन ऑफ द सॉल्ट लॉ, जहाँ पे ये था कि आप इंडियंस अपने खुद से सॉल्ट नहीं बना सकते। बट यहाँ से उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मीन्स गांधी जी ने स्टार्ट कर दिया, अपने खुद से उन्होंने सॉल्ट बनाया। He appealed to the people of India to violate salt law wherever it was possible, जहाँ भी संभव हो सके वहाँ से वायलेट करे। एंड उसे खुद से टू पिकेट द वाइन शॉप एंड बायकॉट द फॉरेन गुड्स, इन वाइन शॉप को छोड़े और दोबारा अगेन एज लाइक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बायकॉट द फॉरेन गुड्स। So students and movement servants were students and government servants were asked to boycott schools, colleges, and government offices, and later on to pay taxes was also made the part of the program. So सॉरी, सो पहले तो पार्ट ये था कि स्कूल्स और कॉलेजेस जो है गवर्नमेंट मेंबर्स है, टीचर्स है, स्टूडेंट्स जो है जो इंडियंस है वो इन्हें का त्याग करें। एंड लास्ट में ये भी डिसाइड किया गया कि अब हम टैक्स भी नहीं देंगे अंडर दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सो द गवर्नमेंट मेड यूज ऑफ रिप्रेसिव मेजर टू सप्रेस द मूवमेंट। और क्योंकि इससे बहुत गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत हानि पहुंच रही थी, तो उसने बहुत सारे रिप्रेसिव मेजर्स मीन्स यू कैन से ताकत का यूज़ किया, दबावी मेथड्स का यूज़ किया इस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए। लेकिन ये जो मूवमेंट था एक आग की तरह, जंगल की आग की तरह पूरे भारत में फैल गया। नंबर 10th फैक्टर वाज फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सो बेसिकली ये था कि इन सारी चीज़ों से प्रभावित होकर 1930 में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए मीन्स फर्स्ट टेबल कॉन्फ्रेंस जो था वो उसे बुलाती है। एंड it was created to discuss the constitutional problem of India and also to discuss the Simon Commission report साइमन कमीशन रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम जो इंडिया फेस करी है उसके लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मतलब लंदन में बुलाई गई थी, कन्वेंट की गई थी। एंड इट वाज ऑन नवंबर 12, 1930। सो इस कॉन्फ्रेंस में टोटल 89 मेंबर्स, no sorry 89, yes 89 members took part, out of which 16 were the member of British political party, 16 जो थे नेटिव स्टेट्स के मेंबर थे, 15 जो थे 57 ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया के टोटल मीन्स द ब्रिटिश हु वर लिविंग इन द इंडिया। सो टोटल वो 57 मेंबर्स थे। सो एंड the main thing was that no representative of the Congress took part in this conference. इस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोई भी इंडियन मेंबर्स मौजूद नहीं था। Though the conference came to the end on January 19, 1921. सो क्वेश्चन बन सकता है कि कब स्टार्ट हुआ, कब समाप्त हुआ। सो नवंबर 12, 1930 को फर्स्ट टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुआ एंड जनवरी 1931 को समाप्त हुआ एंड बिना कोई फाइनल डिसीजंस के ये स्टार्ट हुआ। बट जो इस
फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1913 का अल्टीमेटम कोई डिसीजन नहीं था, लेकिन जो इशू डिस्कस की गई वो ये था कि नंबर 1, कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट, बट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज गवर्नर्स बी गिवन रिजर्व्ड पावर। सो हमने पहले ये सुना था यार, पढ़ा भी है कि गवर्नर के पास अल्टीमेटम पावर था, गवर्नर से ऊपर सेक्रेटरी था, दे वर अलाउड to veto over any decisions of the committee or the councils. So basically ultimatum power इनके हैंड में थे। इवन जो सजेशंस थे दे वर लाइक अनहर्ड। जो भी सजेशंस was for the improvement of the status of the Indians, that was basically dethroned by these governors or these higher authority members because of the powers they have, they possess. सो बेसिकली फर्स्ट इश्यू जो डिस्कस हुआ कि जो स्टेट्स में है इस कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहिए, एंड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज गवर्नर शुड बी गिवन रिजर्व्ड पावर। माइनॉरिटी को बचाने के लिए गवर्नमेंट के पास लिमिटेड पावर होनी चाहिए। नंबर 2, डायरकी बी इंट्रोड्यूस्ड इन दिस सेंटर। अभी हमने पढ़ा था कि साइमन कमीशन ने के रिपोर्ट ने सजेस्ट किया था कि डायरकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस शुड बी अबॉलिश्ड। प्रोविंसेस में डायरकीज जो है सॉरी अबॉलिश किया जाए। एंड हेयर वी आर सीइंग दैट इट सेड डिस्कशन जो फर्स्ट राउंड टेबल में चली वो ये था कि डायरकी बी इंट्रोड्यूस्ड इन द सेंटर। So you can see the collapsing ideals of the Britishers. Number 3 is federal government be introduced in the center, which will also include the representative of princely state. और तीसरा जो डिमांड था वो ये था कि फेडरल गवर्नमेंट जो है फॉर्म की जाए, जो कि जिसमें कि प्रिंसली स्टेट्स भी तो जो है वो मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स विल बी इंक्लूडेड। सो ये भी एक कारण बना। नंबर 11वां जो कारण बना वो था गांधी इरविन पैक्ट 1931। सो बेसिकली हुआ ये कि ब्रिटिश जो थी वो अवेयर थे कि ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो बिना कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट्स के नहीं, मतलब कोई भी सॉल्यूशन इसका जो गतिविधियां चल रही थी भारत में उसका कोई भी हल नहीं लाया जा सकता। देयरफॉर विद द पर्पस टू क्रिएट गुडविल एंड टू गेट कोऑपरेशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट रिलीज महात्मा गांधी अलॉन्ग विथ 19 मेंबर्स। सो बेसिकली ये था कि उस वक्त महात्मा गांधी अरेस्टेड थे, तो महात्मा गांधी और अन्य 19 मेंबर्स ऑफ कांग्रेस का जो थे वर्किंग कमेटी को उन्हें छोड़ दिया गया फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल, ताकि उन कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट लिया जा सके। आफ्टर दिस अ पैक्ट वाज साइंड बिटवीन लॉर्ड इरविन जो कि वाइसरॉय थे इंडिया के, और महात्मा गांधी के बीच में जो था पैक्ट एक साइन हुआ। एंड और जो विच इंक्लूडेड द फॉलोइंग कंडीशन, उसके जो अंदर जो कंडीशंस थी वो ये हैं। पहली कंडीशन ये थी, एक्सेप्ट फॉर दोज पर्सन हु हैव इंडल्ज्ड इन एनी सॉर्ट ऑफ वायलेंस, वी हैव सीन द चौरी चौरा वायलेंसेस एंड अदर्स दैट टुक प्लेस, सो ड्यू टू विच ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड अरेस्टेड many Indian members and many you can say many leaders, many peoples also, general publics were also arrested. So इसमें पहला जो कंडीशंस रखा गया था गांधी इरविन पैक्ट का, गांधी जी को छोड़ने, गांधी जी और अन्य 19 मेंबर को छोड़ने के बाद, जो कि 1931 में टुक प्लेस हुआ था, उसमें बोला गया था पहला कंडीशन कि जो भी पीपल जिसमें इंडल्ज रहे वायलेंस में उनको छोड़ के बाकी सारे जो अदर्स पीपल हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। अदर पर्सन विल बी रिलीज्ड। बाकी जो वायलेंस में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किए हैं लोग, वो उनको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है। नंबर 2 वाज द फाइन इम्पोज्ड ऑन सर्टेन विलेज फॉर टेकिंग पार्ट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विल बी रिमीटेड। जो फाइन लगाया गया था, क्या हुआ था कि कुछ जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स के दौरान कुछ विलेजेस के ऊपर ब्रिटिशर्स ने अगेन वही कर
कर जो हम सुनते आए हैं, लगान फिल्म भी बनी थी इस पर, तो वही कर लगा दिया था। तो उन्होंने गांधी इरविन पैक्ट में बोला गया कि जो फाइन लगाया गया है उसे हम माफ़ कर देंगे। एंड सम विलेजेस विल बी अलाउड टू मैन्युफैक्चर सॉल्ट ऑफ देयर ऑन यूज़, और कुछ ही विलेजेस को ये अनुमति रहेगी कि वो अपना नमक खुद ही बनाएं, not over they cannot pick it, they cannot sell it all over India, or other villages will be not allowed. नंबर 4th प्रोविजन और कंडीशन जो रखा गया था गांधी जी के सामने वो था कि अंडर द प्रोविजन ऑफ द लॉ द इंडियंस विल बी अलाउड टू डू पिकेटिंग बट दे विल रिफ्रेन फ्रॉम द बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। लेकिन पिकेटिंग अलाउ किया जाएगा, लेकिन उन्हें फॉरेन गुड्स को बायकॉट नहीं करना है, समझे, क्योंकि एज इंडियंस वर बायकॉटिंग फॉरेन गुड्स, सो लॉट ऑफ losses were going in the business of the Britishers. So in return of this, Congress was to discontinue the civil disobedience movement. So उस वक्त जब गांधी इरविन पैक्ट हो रहा था, मीन्स 1 days 2 days बिफोर, उस वक्त चल ही रहा था हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो एक कंडीशन जो थी इसके रिटर्न में जो था कांग्रेस पार्टी को दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो एंड करना था। एंड जो था सेकेंड चीज़ जो था कि वो कांग्रेस नीड टू टेक पार्ट इन दिस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जैसा कि हमने देखा अभी कि फर्स्ट राउंड ऑफ टेबल कॉन्फ्रेंस में नो कांग्रेस मेंबर्स वेयर इंक्लूडेड, नो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कांग्रेस टुक पार्ट इन दिस कॉन्फ्रेंस। सो अब इसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में होती है। वो कब? 6 महीने बाद, गांधी इरविन पैक्ट होने के 6 महीने बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। एंड वो हुई 7 सितंबर 1931 को, ये याद रखिएगा, 7 सितंबर 1931 को। एंड महात्मा गांधी जो थे कांग्रेस के अकेले रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो इसमें पार्टिसिपेट किए थे। एंड मुस्लिम की तरफ से मिस्टर M.A. मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो पार्टिसिपेट किया कांग्रेस की तरफ से, महात्मा गांधी। एंड जो मुस्लिम थे, मुस्लिम कमेटी, उनकी तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना। द स्पोक पर्सन ऑफ इंडियन स्टेट्स आल्सो पार्टिसिपेटेड, जो स्पोक पर्सन थे वो भी उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। बट द uncompromising attitude of Mr. Jinnah, the high-paced demands of the Hindu Savitis, and the unwillingness of the government to part with the power foiled all chances of settlement on the question of communal representation. पहली बात तो ये थी कि मिस्टर जिन्ना कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को इंड नहीं करना चाहते थे। सेकेंड बात, गवर्नमेंट मिस्टर गांधी ने वो सम पावर सेपरेशंस की बात की तो उसमें गवर्नमेंट राजी नहीं थी। एंड जो हिंदू सभहित जो थे उनके हाई डिमांड्स थे वो भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहे थे। इन फैक्टर्स के कारण जो था अगेन कोई कंक्लूजन नहीं निकला। महात्मा गांधी वाज अगेंस्ट कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वेयर आज मिस्टर जिन्ना वाज नॉट रेडी टू बज इवन फॉर एन इंच। वो अपनी जगह से 1 इंच घसकने को तैयार नहीं थे। वो चाहते थे कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हो ही, और मीन्स मुस्लिम कम्युनिटी को अलग से रिप्रेजेंटेशन दिया ही जाना चाहिए, उनका अलग से इलेक्शन होना ही चाहिए। जबकि हमने देखा था कि इस जब उन्होंने लाहौर से कांग्रेस सेशन, लाहौर जो सेशन में जब उन्होंने डायरेक्टली बोला था कि हम बेसिकली एक सिंगल इलेक्शन टाइप चाहते हैं ना, हम उसमें उसी में बेसिकली इट वाज इन नेहरू रिपोर्ट, और हम उसी में जो है मुस्लिम्स को जो है वो रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्टोरल विद द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर मुस्लिम, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना तैयार नहीं हुए। As a result of this, the conference was unsuccessful and Gandhi came back disappointed. इसके रिजल्ट ये हुआ कि गांधी जो था ये कॉन्फ्रेंस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी था, वो भी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी अनसक्सेसफुल रहा और सभी डिसअपॉइंटेड हुए। और गांधी जी आने के बाद उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोबारा स्टार्ट किया। बट हुआ ये कि जब वो
उस गांधी जी के एब्सेंस में जो थे, क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्शंस, बड़े बड़े एक्शन लिए। यूपी, बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट आए। इन स्टेट्स में, यूपी में, बंगाल में और नॉर्थ NWFP में तगड़े एक्शंस लिए गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी जी के एब्सेंस में। बहुत सारे लोगों, इन लीडर्स, कांग्रेस लीडर को अरेस्ट कर लिया गया, लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। एंड अगेन डिसऑर्डर टर्मोइल में कंट्री को दोबारा पे जकड़ लिया गया। ब्रिटिश अपने कब्जे में दोबारा, मतलब पूरे उन्होंने जोर शोर से तैयारी कर ली थी, तैयारी की थी जब गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे तब। एंड जब वो भारत पहुंचे तो उन्हें भी जेल में डाल दिया गया। सो दिस वॉज अगेन यू कैन से, एज कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है वो आगे बढ़नी ही थी बात। सो अगेन ये भी एक्टर जो रहा था, ये भी एक फैक्टर बना 1935 एक्ट पास करने का। नंबर 13 वॉज द कम्युनल अवार्ड ऑफ 1932. So as the second result conference had failed to arrive the settlement of the communal question, the British Prime Minister Lord Ramsay MacDonald, we have seen that liberal party जो थी वो आई थी एंड इन ब्रिटेन, एंड उसके लीडर जो थे लॉर्ड रामसे मैकडोनल्ड थे। सो तो क्या हुआ कि जब ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हुई तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड रामसे मैकडोनल्ड जो थे, वो उन्होंने अपना ऑन डिसीजन दिया उसको, और उसका नाम रखा है कम्युनल अवार्ड। सो द अवार्ड एम्ड एट सेपरेटिज्म को एम करती थी। एंड अंडर द अवार्ड मुस्लिम यूरोपियन सिक्स विल इलेक्ट देयर ऑन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कम्युनल बेसिस। तो उनका कहना ये था कि इस मतलब इस कम्युनल अवार्ड के अनुसार, इस कम्युनल अवार्ड डिसीजन के अनुसार उनका कहना यह था कि मुस्लिम और यूरोपियंस और सिख को अपना अलग रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, उनका अपना सेपरेट इलेक्शन कराया जाएगा, हरिजन्स को अपना मेंबर्स चुनने का अधिकार होगा, जो भी प्रोविंसेस में मुस्लिम माइनॉरिटी है तो वहाँ पे उनको अपना खुद का रिप्रेजेंटेटिव चुनने का पूरा हक रहेगा। एंड नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस और सिंध में जो यहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी में है, वो हिंदू विल बी गिवन कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब हिंदू भी अपने कम्युनिटी बेस्ड रिप्रेजेंटेशन को सेलेक्ट कर सकती है। बट यहाँ पे ये था कि कांग्रेस ने फुल्ली इसका विरोध किया, क्योंकि हमने ये भी देखा, अभी जस्ट देखा कि नेहरू रिपोर्ट में साफ साफ कांग्रेस पार्टी ने इनकार किया था कि हम कम्युनल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चाहते। यहाँ तक कि उन्होंने मुस्लिम्स को सपोर्ट्स को रिगेन करने की कोशिश की, बट अगेन थ्रू द कम्युनल अवार्ड ब्रिटिशर्स इम्पोज्ड दिस सेपरेटिज्म एक्ट। सेपरेट बेसिकली वी हैव सीन दैट फ्रॉम द बिगनिंग, जब से ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तब से उन्होंने दो स्टेट्स को, दो प्रिंसली स्टेट्स को लड़ाया, एंड जो हारा उसमें मतलब लड़ा के बीच में फ़ायदा उठाना उनका नियत रहा था। सो थ्रू दे सेम दे वांटेड टू कंटिन्यू दैट, एंड दे वांटेड टू कंटिन्यू डिवाइडिंग इन इंडियाज। बट उस वक्त यूनिटी इतना आ चुकी थी, इंडियन नेशनल मूवमेंट इतना तगड़े पे था कि कांग्रेस ने इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। कांग्रेस को बात, ये सारी चीज़ें मतलब पता थी। नंबर 14 जो था वो था पूना पैक्ट 1935। नंबर 14 फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल रहा वो था पूना पैक्ट ऑफ 1932। सो बेसिकली जब एक कम्युनल अवार्ड्स का डिसीजन आया तो उसके आते ही जो गांधी जो थे उन्होंने अपना मतलब जेल में रहते हुए ही वो अपना फास्ट स्टार्ट कर दिया डेथ तक का, मतलब वो कुछ जल खान पीन सारा छोड़ दिए। और वो कब छोड़े? सितंबर 20, 1932 अगेंस्ट दिस एंटी नेशनल इमोरल डिजाइन ऑफ सेपरेटिंग हरिजन फ्रॉम द हिंदूज। मतलब ब्रिटिश गांधी जी ने भाप लिया कि ये अगेन सेपरेटिज्म खेल रहे हैं ब्रिटिशर्स, इसलिए उन्होंने इसके पूरे विरोध में मतलब जल भोजन त्याग दिया। और जल्दी गांधी क्योंकि उन्होंने भोजन त्याग दिया तो उनकी कंडीशंस जो हो गई सीरियस होती गई। हिज अपील टू द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर फॉर चेंज इन द अवार्ड प्रूव्ड इनइफेक्टिव। उनका अपील जो था
वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के सामने वो इनइफेक्टिव साबित हो रहा था, कोई असर नहीं कर रहा था, गांधी जी की जिंदगी खतरे पे लगी हुई थी। एट लास्ट इंडियन लीडर्स मेट एट पूना टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। तो लास्ट में पूना पे इंडियंस ने इंडियन मेंबर लीडर्स जो हैं वहाँ पे आए और उन्होंने सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश की। और वहाँ इसीलिए वो जो डिलिब्रेशंस बेसिकली फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द सिचुएशन एंड द डिलिब्रेशन रिजल्टेड इन पूना पैक्ट बना। So the condition of Pune Pact were number one, depressed class, that is Dalit, abandoned separate electorate in favor of joint electorate. उन्होंने मतलब सब दलित्स को जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जा रहा था उसे खाली किया जाए, छोड़ा जाए और जॉइंट इलेक्टोरेट से ही इलेक्शन करवाया जाए। एंड 148 सीट्स इन डिफरेंट प्रोविंशियल लेजिस्लेचर विल बी रिजर्व फॉर डिप्रेस क्लासेस इन प्लेस ऑफ 71। पहले जो थी 71 सीट से रिजर्व थी, लेकिन अब 141 सीट रिजर्व की जाएगी फॉर इन डिप्रेस क्लासेस के लिए। एंड जो कि मतलब डिफरेंट प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में को टोटल मिला के 148 सीट छोड़ी जाएगी। और 18% जो सीट है सेंट्रल लेजिस्लेचर में विल बी अलॉटेड टू द जनरल इलेक्टोरेट फॉर ब्रिटिश इंडिया वेर आल्सो भी रिजर्व फॉर डिप्रेस क्लासेस। तो 18% सेंट्रल लेजिस्लेचर में रिजर्व होगा एंड 148 सीट जो है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में दलित्स के लिए रिजर्व होगा। बिकॉज गांधी जी का कहना था कि दलित मतलब सेम समाज में है, दलित्स अलग नहीं हो सकते। दलित्स मतलब जो सेपरेटिज्म जो ये लॉर्ड रमसे मैकडोनल्ड ने बोला था उसके लिए खिलाफ पूरा थे। तो अगेन जिस तरीके से उन्होंने नेहरू पैक्ट में मुस्लिम को दिया था रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, सेम तरीके से उन्होंने हरिजन्स को दिया। बट वहाँ पे नेहरू पैक्ट में ये था कि मुस्लिम एक्सेप्ट नहीं किए। वी हैव सीन इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑल्सो मिस्टर जिन्ना ने एक्सेप्ट नहीं किया। बट दिस पुना पैक्ट वाज एक्सेप्टेड क्योंकि यहाँ पे हरिजन्स एक्सेप्ट कर लिए थे। जो हरिजन्स के मेन लीडर थे और दलित से मेन लीडर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर agreed to this basically these wordings of the Mahatma Gandhi. So the depressed classes were given fair representation in local bodies and public services. उन्हें बराबर के representation दिए गए. And the British government had accepted the condition of the Pune Pact and made amendments in the communal award accordingly. नंबर 15 जो था ये रीजन जो पॉसिबल हुआ वो था थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सो बेसिकली थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था नवंबर 1932 में लिया गया, इन विच एक्सेप्ट कांग्रेस ऑल अदर पार्टीज एंड ऑर्गेनाइजेशन टुक प्लेस। मतलब इसमें फिर कांग्रेस नहीं थे, हमने देखा था कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी कांग्रेस के मेंबर नहीं थे, सेकंड में कांग्रेस के मेंबर के तरफ से केवल महात्मा गांधी थे एंड थर्ड में भी कांग्रेस को नो एंट्री मिली। इन दिस कॉन्फ्रेंस एंड द रिपोर्ट्स ऑफ द वेरियस सब कमिटी वाज फॉर्म्ड ड्यूरिंग सेकंड राउंड टेबल conference were discussed, and on the basis of these reports the British government published a white paper in March 1933 which became the basis of the Government of India Act 1935. So basically जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से जो बेसिकली रिपोर्ट्स निकली उसको वाइट पेपर में 1933 में लिखा गया जो कि बेसिस बना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के। So for now let's stop here. In the next video we will see the main provision of the act of 1935. Thank you.